my dear lovely viewers. How are you? Hope you are in the pink of your health. I think you are enjoying my videos. So if you are liking the way I am teaching you, please share my videos with others so that they also get the benefit of it and watch it at maximum. Okay? So today we are going to do the poem Once Upon a Time. This is written by Nigerian poet Gabriel Okara. So in this poem we will find that the people, they are just having a hypocritical behavior in these days. They were different in the earlier times, but now they are quite different. In the earlier times, if some guest arrives to their house, they welcome them. They were very hospitable, very friendly, very lovely behavior they were having. Their behavior was true. But now, as the time has passed, we find that now their behavior has become totally selfish. Whatever they are doing, it is just full of artificiality. So let's get started. Once Upon a Time by Gabriel Okara. In this poem, we find that the poet, he wants to tell his son that there was a time when human beings were true and free from any kind of artificiality. ठीक है, बच्चे इस पोएम में हम ये देखेंगे कि कैसे एक टाइम था जब लोग जो थे उनमें बनावटीपन नहीं था. ठीक है. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes, cold eyes, search behind my shadow. Very nicely, the poet, he explained here in these lines that there was a time when people laughed out of real joy at heart. कि जो लोग हंसते थे ना तो दिल से हंसते थे, कोई इनमें बनावटीपन बिल्कुल नहीं था. वो दिल से हंसते थे और उनकी जो स्माइल थी वो आंखों से भी शो होती थी. और जो उनके दांत वो दिखाते थे हंसते वक्त, वो एक ओरिजिनलिटी थी उसमें, एक जेन्युइनपन था. राइट. सच लाफ्टर कुड बी सीन रिफ्लेक्टेड इवन देयर आईज. आईज से भी शो होती थी एंड आईज लुक ब्राइट एंड चीयरफुल टू. और उनकी आंखें बहुत चमकदार लगती थी तब. बट नाउ दे लाफ इवन व्हेन दे आर नॉट हैप्पी. लेकिन अब क्या हो गया? अब तो वो तब भी हंसते हैं जब उनका मन नहीं है. एंड देयर आईज रिमेन कोल्ड एंड दे डोंट एक्सप्रेस एनी जॉय. आईज ब्लॉक कोल्ड, इट्स अ मेटाफर. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे उनकी आंखें जो बर्फ़ की तरह ठंडी हैं, बिना किसी चार्म के, बिना किसी वार्मथ के. दे आर एज कोल्ड एंड एक्सप्रेशनलेस. वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, कोल्ड है. कैसे? एक ब्लॉक ऑफ आइस की तरह, बर्फ़ के एक बड़े टुकड़े की तरह आप कह सकते हो. देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स. But now that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while the left hands search my empty pockets. In these lines, the poet tells his son that in the past there was a time when people used to shake their hands out of friendship and good feeling. एक बहुत अच्छी फीलिंग होती थी. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand searches my empty pockets. Here the poet says to his son that there was a time, एक समय था जब लोग दिल से हाथ मिलाते थे एक दूसरे के साथ. But now, लेकिन अभी क्या है? वो टाइम तो जा चुका है. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स. अब वो दिल से हाथ नहीं मिलाते. वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स. एक हाथ वो मेरे को मिला रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, जबकि दूसरा हाथ जो है उनका जो है हमारी पॉकेट्स में है कि क्या इफ़ आई विल शेक हैंड विद दैट पर्सन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट. अगर मैं उसके साथ हाथ मिलाता हूँ तो क्या उसकी पॉकेट में इतना कुछ है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो. फील एट होम कम अगेन दे से
And when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. There was a time in the past when people used to say they were very hospitable. Being very hospitable, they used to give very warm welcome to their guest. क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनमें मेहमान नवाजी थी, तो वो अपने गेस्ट को बहुत ही अच्छे से डील करते थे. बट नाउ देयर इज़ अ चेंज इन देयर एटीट्यूड. अब तो उनके एटीट्यूड में बहुत चेंज आ गया. नाउ पीपल वेलकम देयर गेस्ट, आस्क देम टू फील होम इनसिंसियरली. कहते तो है उनको भी फील एट होम, लेकिन एक दो बार ही उनको ऐसे लगता है कि एक बार दो बार कि वो अपने उसको घर जैसा महसूस कर रहे हैं. बट थर्ड टाइम ऐसा नहीं है. फील एट होम, कम अगेन. दोबारा आना, घर जैसा ही महसूस करो. दे से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस. ऑथर जो पोएट है वो कहता है कि मैं जब दो बार गया तो मुझे एक बार भी अच्छा लगा, दूसरी बार भी थोड़ा ठीक ही लगा, लेकिन थर्ड टाइम तो मैंने बिल्कुल भी फील नहीं किया कि मैं वहाँ पे एट होम फील कर रहा हूँ, इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ. फॉर देन आई फाइंड द डोर्स शट ऑन मी. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब जो है वो दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं. सो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स सन. आई हैव लर्न टू वेयर मेनी फेसेस, लाइक ड्रेसेस, होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, host face, cocktail faced, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile. कहते कि ये मैं तेरे को बताऊं कि अब तो मैंने बच्चे बहुत कुछ सीख लिया है. जैसे हम ड्रेसेस बदलते हैं ना, सिमिलरली आई हैव लर्नड हाउ टू चेंज द फेसेस. कैसे फेस है? कभी ऑफिस में मेरा और चेहरा है, गली में अपने यारों दोस्तों के साथ और चेहरा है, अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो मैं कुछ और तरह से बिहेव करता हूँ, अगर कहीं कॉकटेल पार्टी में गया हूँ तो वहाँ पे और तरह. इस तरह से मेरे फेस पे अलग अलग स्माइल्स होती हैं, आर्टिफिशियल स्माइल्स होती हैं. जैसे कि हम किसी को पिक्चर अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो हमारे फेस पे एक अलग स्माइल होती है जो कि हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, फेक स्माइल जिसको आप कह सकते. सो and I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. कहते बच्चे अब तो मैंने सीख लिया है कि जो हंसना है सिर्फ अपने दांत दिखा दिए तो समझ लो कि मैंने हंस लिया. अब मैं दिल से नहीं हंसता हूँ, दिल से हाथ नहीं मिलाता हूँ. I have also learned to say goodbye. मैंने गुड बाय कहना सीख लिया है, जबकि when I mean good riddance. रिडियंस होता है कि जैसे छुटकारा हो गया ना, किसी से मैं पूरा ऐसे रिलीफ, अ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ ऑन गेटिंग फ्री ऑफ एन अनवांटेड गेस्ट और पर्सन. किसी इंसान जैसे कोई आया है, हम चाहते कि ये जल्दी से जल्दी चला जाए यहाँ से बस, ठीक है, तो मैं इतना रिलैक्स फील होता हूँ. कहता कहने को मैं कहता हूँ गुड बाय एक स्माइल सी देकर, लेकिन दिल से अगर पूछो मुझसे तो मेरी वो जो स्माइल है वो एक फेक है, और मैं कहता हूँ कि शुक्र है मेरा छुटकारा हुआ. टू से ग्लैड टू मीट यू, और कहना पड़ता है मुझे कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जबकि मैं कोई खुश नहीं हुआ दिल से. एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड. और किसी के साथ लंबी डिस्कशन करने के बाद मुझे ये कहना पड़ता है कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि असल में मैंने तो उसकी टॉक को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, पूरा बोर हो गया था मैं. बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी. लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो बनना चाहता हूँ what when I was like you, जब मैं तेरे जैसा था. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Bare fangs होते बेटे naked serpent's tooth, which it injects the poison into the victim to the bite. फैंग्स होते हैं उसके वो दांत जिससे वो कि पॉइजन जो है दूसरे के शरीर में इंसर्ट कर देता है. वो कहता है कि बच्चे मेरा विश्वास करो कि मेरा बहुत मन है कि मैं अब पहले जैसा हो जाऊं, जैसा मैं तुम्हारे साथ, जैसे तुम हो. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दोबारा सीखनी है, जैसे कैसे हंसना है. लेकिन अब जब मैं शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ मिरर में,
तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे जो दांत हैं, मुझे अपने दांत एक सांप के दांत जैसे लगते हैं. इट लुक्स लाइक serpent teeth. So show me son how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. In the concluding lines, the poet says he expresses a strong desire to get back to the simplicity and the innocence of his childhood days. वो चाहता है कि मैं अपने बचपन की हुई सादगी और जो भोलापन था उन दिनों में वापस चला जाऊं. He requests his son to teach him how to laugh in the real sense of word. वो कहता है कि तुम मुझे सच में हंसना सिखाओ, and should show to his father how he laughs and smiles now. The poet used to laugh and smile innocently in his childhood, and he would like to go back to the simplicity and the innocence of his earlier days. वो अपने बचपन के उन्हीं दिनों में दोबारा जाना चाहता है. So in this poem we find that people they are just changed now. बदल गए हैं वो. They don't have any feeling of welcoming the guest. This is all maybe due to inflation. बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है इस वजह से, या फिर there is a feeling of jealousy. There are so many reasons that people are totally changed. Now my dear students, let's do the central idea of the poem. This poem is a criticism of modern life. ये जो poem है आजकल के जीवन की एक आलोचना उसके बारे में करती है. The poet satires the modern man's hypocrisy and insincerity. जो कवि है वो आजकल के आदमी के अंदर जो वो पखंड सा है ना, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है, उसके ऊपर एक पन है, एक उसके ऊपर मजाक सा करता है. His actions do not reflect his feelings. कहते हैं उसके जो actions, उसके जो व्यवहार है वो उसकी feelings नहीं show कर पाते. They are a mere pose. वो just एक ढोंग है. He can laugh without being happy. वो बिना खुश हुए भी हंस सकता है. He can shake his hand with you while picking your pocket with his left hand. वो एक हाथ से, राइट हैंड से वो तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ शेक कर सकता है, और दूसरे हाथ से वो तुम्हारी पॉकेट जो है उसको चेक कर सकता है. He says goodbye when he means good riddance. वो अलविदा तो कहता है लेकिन मन से वो आपसे छुटकारा पाता है. There is no feeling of love and sincerity in the heart of the modern man. आजकल के आदमी के मन में कोई भी प्रेम और सच्चाई की भावना या ओरिजिनलिटी नहीं है. In the good old days people were sincere. पुराने ज़माने में लोग जो थे बहुत सिंसियर थे. They had a affectionate and virtuous. वो बहुत ही प्रेम वाले थे और उनमें गुण भरे हुए थे. And the poet glorifies the past simplicity in man's behavior. और जो कवि है वो जो पास्ट में आदमी का जो व्यवहार था, जो नेचर था, उसमें जो सिंप्लिसिटी थी उसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पोइट्री में उसने लिखा है, उसका गुणगान करता है. He glorifies it.